Good morning, students. In first and second part, we saw that the writer of our lesson found a letter written by Jim Macpherson to his wife. And in second part, also we saw that what was there in the letter. And now in this third part, we will see what will the writer do with this letter. So, okay, now we start our lesson, part 3. I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. Means writer again folded the letter and slipped it carefully back into the envelope. राइटर ने जो लेटर रीड किया था वो लेटर को फिर से फोल्ड करके उसके जो एनवेलप में से उस लेटर को निकाला था उनमें वो वापस रख देते हैं. आई केप्ट अबाउट ऑल नाइट. वो नाइट राइटर पूरी नाइट सो नहीं सकती. बाय मॉर्निंग एंड इन द मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैव टू डू. The writer here said that by the morning, सुबह उनको पता था कि उनको क्या करना है. I drove into Bridgeport. Writer Bridgeport की ओर पहुंचते हैं, निकल पड़ते हैं. Just a few miles away, and this place was just a few miles away from the writer's home. I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was. And at the Copper Beaches, writer asked a boy about Miss Connor. House number 12 turned out to be nothing but a burnt-out cell. Writer asked about house number 12. That was turned out to be nothing but only a burnt-out cell. Means वहां पर अब कुछ भी नहीं था. Only the house was destroyed by fire. The window boarded up. जो विंडो थी उसको उसके ऊपर बोर्ड से उसको कवर किया गया था. I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of Mrs. Macpherson. राइटर यहाँ पर उनके पास वाले जो हाउस था उसका डोर नॉक करता है और फिर किसी को पूछता है कि अभी इस दिनों में मिस मैकफरसन किसको वो कहां पर है और कोई उसको पहचानता है या नहीं. ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स. स्लीपर्स पहने हुआ एक ओल्ड मैन था. उसने बताया कि ही न्यू और वेयर वो मिस मैकफरसन को अच्छी तरह से जानता है. अ लवली ओल्ड लेडी. वो एक बहुत ही अच्छी ओल्ड लेडी है. ही टोल्ड मी. ने मुझे बताया. A bit muddy-headed, but at her age she was entitled to be. वो एक confused mind वाली थी और अभी उसकी एज के अकॉर्डिंग वो ऐसा हो सकती है. इट इज कॉमन. वो संस्कृति वो ऐसी होनी चाहिए. 101 years old. Now Mrs. Connie was 101 years old. She had been in the house when it got fire. वो वही हाउस में थी जब वो हाउस में फायर को क्वाइट किया था. मींस जब वो हाउस में फायर हो गई. नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड. लेकिन एक कोई भी नहीं जानता था कि वहां पर वो हाउस में फायर कैसे होगी, कैसे लगी. बट इट वुड वेल हैव बीन कैंडल्स. लेकिन ये जो फायर का रीजन हो सकता था वो कैंडल्स की वजह से ही हो सकता था. बिकॉज शी यूज्ड कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी. ओल्ड लेडी मिस जेम मैकफरसन जो कॉनी थी वो इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं कर रही थी, लेकिन उसके बदले में वो कैंडल्स यूज कर रही थी. व्हाई? बिकॉज शी ऑलवेज थॉट. वो ऑलवेज ऐसा ही सोचती रहती थी कि इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव. जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो ज्यादा एक्सपेंसिव होती है. एंड जो कैंडल है वो इलेक्ट्रिसिटी से चीप है, इसलिए वो कैंडल से यूज किया करती थी. The fireman had got her out just enough time. लेकिन
ए फॉर्चुनेटली ये अच्छा हुआ कि जो फायरमैन था वो कॉनी को मिसेस जे मैकफर्सन को टाइम पर से वो घर से बाहर निकाल दिया, इसलिए वो जिंदा बच सकी. She was in a nursing home now, and now at that time she was in a nursing home. He told me. The old man told the writer, Burlington House, and this nursing house was at Burlington House on the Dorchester Road, which is at the Dorchester Road on the other side of town, जो टाउन का अदर पार्ट में था. First we will see comprehension check, 2 questions. Why did the author go to Bridport? So author went to Bridport to give letter to Colin. How old was Miss McPherson now? Miss McPherson was 101 years old, and where was she? She was now at Burlington House in nursing house. Next paragraph. I found Burlington House nursing home easily enough. Writer said that he found nursing house easily. There were paper chains up in the hallway, and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angle. अब जब वो नर्सिंग हाउस पर पहुंचा तब उसने देखा कि सारा जो नर्सिंग हाउस था उसको डेकोरेट किया गया था, उसपे पेपर्स, कलरफुल पेपर्स लगाए गए थे, और एक कॉर्नर पर एक लाइटेड क्रिसमस ट्री भी लगाया था, और उसके ऊपर एक लॉपसाइडेड मींस अनबैलेंस्ड एंजल भी था. एंजल मींस देवी. I said I was a friend come to visit Mrs. McPherson to bring her a Christmas present. मैंने कहा कि मैं वन ऑफ फ्रेंड ऑफ मिसेस जिम मैकफर्सन, मैं जिम मैकफर्सन का एक फ्रेंड हूँ, एंड आई कम हियर टू गिव क्रिसमस प्रेजेंट टू हर. I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hats and singing. मैं डाइनिंग रूम में देख सकता था तो सभी लोग जो वहां पर नर्सिंग हाउस में थे वो सभी पेपर हेड पहने हुए थे एंड सिंगिंग कर रहे थे. The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me. जो मैट्रन था, जो मैट्रन थी, जो नर्सिंग हाउस की केयर रखती थी, तो वो भी उसने भी ऐसी हेड पहनी हुई थी और मुझे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रही थी. She even offered me a mice tea. उसने मुझे pieces of meat भी ऑफर किया. She walked me along the corridor. वो मेरे साथ कॉरिडोर में चलते चलते आई. मिसेस मैकफर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स, लेकिन द राइटर सेड दैट द ऑल अदर पर्सन्स वर सिंगिंग इन डाइनिंग रूम, बट एट दैट टाइम मिसेस जिम मैकफर्सन वाज नॉट देयर. शी वाज नॉट विद अनदर. शी टोल्ड मी शी इज रादर कंफ्यूज्ड. Matron said to Jim McPherson that she is rather confused today because today is Christmas Day and she was confused on Christmas Day. Why she is confused? Because she was waiting for her husband who told her that she will back on Christmas Day, but after many years she would not come back. So she was confused. So we thought it best if she had a good rest. इसलिए मैट्रन ये कहती है कि हमने ऐसा सोचा कि अगर वो एक अच्छा सा रेस्ट लेगी, आराम करेगी तो उसके लिए अच्छा होगा. She has no family. Again, she also said that she has no family, and you also know means या अगर मैट्रन राइटर को कहती है कि उसको कोई फैमिली मेंबर्स नहीं है, वो भी आप अच्छी तरह से जानते हो. नो वन विजिट, और उसकी कोई विजिट भी नहीं देता है. सो आई एम श्योर, इसीलिए मैं श्योर हूं. मैट्रन सेड टू जिम मैट्रन सेड टू राइटर कि आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज्ड टू सी यू. वो जैसे ही तुझे देखेगी बहुत ही खुश हो जाएगी. शी टुक मी इनटू अ conservatory with wicker chairs and potted plants all around and
वो मुझे एक ऐसी प्लेस पर ले गई कि जहां पर वो जो मिसेस जिम मैकफर्सन थी वो अपने व्हीकल चेयर पर बैठी हुई थी एंड लेफ्ट मी, एंड फिर मेट्रो ने मुझे छोड़ दिया अकेला। द ओल्ड लेडी वाज सिटिंग इन अ व्हीलचेयर। ओल्ड लेडी मींस मिसेस जिम मैकफर्सन वाज सिटिंग इन अ व्हीलचेयर, वो व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। यहाँ पर इन दिस पिक्चर आल्सो वी कैन सी दैट on the wheelchair Mrs. Jim McPherson was sitting. Her hands folded in her lap. उसके जो दोनों हैंड थे वो अपने लैप पर होल्ड किया हुआ था। She had silver white hairs piled into a wispy bun. उसके जो हेयर थे वो एक बन में उसके झुमके के रूप में अपने सर पर उनको जो वाइट हेयर थे उसको वहां पर लगाया हुआ था। She was gazing out at the garden. वो gazing out means look, yeah, looking. She was looking at the gardens. Hello, I said. She turned and looked up at me vacantly. फिर जैसे राइटर मिसेस कॉनी को कहते हैं कि हेलो, at that time she looked, she turned and looked at the writer, but how vacantly means without any feelings. Happy Christmas, Connie. Writer, this is Happy Christmas to Connie. I went on. I found this. I think it is yours. Now, writer told her about a letter which he found from the desk. Letter राइटर यहाँ पर लेटर के बारे में कहता है कि वो लेटर जो दे रहा है और मुझे कहाँ से मिला है वो सब। As I was speaking, her eyes never left my face. जैसे मैं उसको बता रहा था लेकिन तब उसकी आंखें मेरे पर से हट नहीं रही थी। I opened the tin box and gave it to her. मैंने वो जो टिन बॉक्स था जिसमें से लेटर मिला था वो टिन बॉक्स को ओपन किया and gave it to her, और फिर वो लेटर उनको दिया। That was the moment her eyes lit up with the recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. एक ऐसी मोमेंट थी कि जो मोमेंट पर वो बहुत ही खुश हो गई, उसकी आईज पर ब्राइटनेस आ गई, उसके चेहरे पर पूरा हैप्पीनेस की फीलिंग स्प्रेड हो गई। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेज, मैंने इसके राइटर ने एक्सप्लेन किया अबाउट द डेज, अबाउट हाउ हैड फाउंड इट। राइटर ने ये भी एक्सप्लेन किया कि वो लेटर उनको कैसे किस तरह से मिला। बट आई डोंट थिंक, लेकिन writer said to us that he was not thinking that she was listening. उसको राइटर को ऐसा लग रहा था कि जब मैं ये सब कुछ उसको बता रहा था तब मुझे ऐसा फील हो रहा था कि she was not anything listening. She was not listening anything. For a while she said nothing. थोड़े टाइम के लिए वो कुछ भी बोली नहीं, but stroked the letter tenderly with her fingers. लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से बहुत ही जेंटली वो लेटर को अपने फिंगर्स में पकड़ के हुए बैठी रही। Suddenly she reached out and took my hand. फिर अचानक से वो मेरे पास आई और मेरा हैंड अपने हाथों में ले लिया। और eyes were filled with tears. उसकी जो आंखें थी उसमें आंसू भर आए थे। You told me you would come home by Christmas, dearest. She said. कॉनी ने बताया कि तूने मुझे कहा था कि तुम क्रिसमस पर, नेक्स्ट क्रिसमस पर आओगे। स्टूडेंट्स, ये जो सेंटेंस है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। You told me. Here this sentence is spoken by Mrs. Connie to writer. ये जो सेंटेंस है वो कॉनी ने राइटर को कहता कि you told me you would come home by Christmas. तूने मुझे ये कहा था कि तुम नेक्स्ट क्रिसमस पर घर आओगे। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि कॉनी जो है वो राइटर को अपना हस्बैंड समझ लेते, उनको वही होता है कि ये जो राइटर है वो खुद उनका हस्बैंड है और वो इस क्रिसमस डे पर वापस आए। एंड हियर यू आर, और शी आल्सो टेल टू राइटर एंड हियर यू आर, नाउ यू कम बैक टू विथ मी, the best Christmas present in the world. And
एंड जब तुम वापस आए हो क्रिसमस डे पर, तब यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। सो स्टूडेंट, हमारा जो लेसन का टाइटल था द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट, तो अब हमें पता चलता है कि ये बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट होने के लिए कौन है? अपने हस्बैंड, जो जिम मैकफर्सन, जो एक वॉर में गए थे और उन्होंने बोला था कि बाय द नेक्स्ट क्रिसमस ही विल कम बैक। लेकिन अभी तक हमने जो लेसन देखा वहां से हमें ये पता चलता है कि वो जो हस्बैंड था, जो जिम मैकफर्सन था, वो कभी भी वापस आया नहीं है। और आज जब राइटर वो कोनी को लेटर देने गए हैं, तब कोनी उसको ही अपना हस्बैंड समझ लेते और कहते हैं कि यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, तू ही एक मेरा बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट हो। तो अब हमें पता चला कि हमारा जो टाइटल था द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट, वो बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट कौन था? वो जिम मैकफर्सन, जो कोनी का हस्बैंड था। कम क्लोजर जिम डियर सिट डाउन, वो कहती है राइटर को तुम मेरे पास आओ और मेरे साथ बैठ जाओ। आई सेट डाउन बिसाइड हर, राइटर सेट डाउन बिसाइड हर, उसके पास पीछे जाकर बैठा। एंड सी किस माय चीक, और आफ्टर इट शी आल्सो किस टू राइटर। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम, शी आल्सो टेल टू राइटर दैट आई रीड योर लेटर। हमने पहले देखा कि जो कौनी है वो राइटर को अपना हस्बैंड समझ लिया है, तो वो अब कहती है कि मैं तेरा लेटर ऑलवेज पढ़ती आई, रीड करती आई। आई वांटेड टू हियर योर वॉइस इन माय हेड। अब मेरी ये विश है, मेरी ये डिजायर है कि तुम खुद ये लेटर को पढ़ो और मुझे मेरे वर्ड्स, मेरे वॉइस सुनना है। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विथ मी, जो ऑलवेज मुझे ऐसा फील करवाता है कि तुम मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और अभी जो तुम मेरे साथ आ गए, नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योरसेल्फ। अब तुम ये लेटर खुद मेरे लिए पढ़ोगे। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तू मेरे लिए करेगा जिम डियर? आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, अब फिर से मैं तेरा आवाज को सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, मुझे वो बहुत ही पसंद है। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और आफ्टर इट हम थोड़ी सी टी लेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मैंने तेरे लिए एक बहुत ही अच्छी केक बनाई है। मार्जिपन ऑल अराउंड, उसके आसपास पूरे मार्जिपन लगाया हुआ है। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन, क्योंकि मैं जानती थी कि तुझे मार्जिपन कितना पसंद है। सो स्टूडेंट्स, इन दिस लेसन वी सो दैट first the writer of our lesson found a letter written by Jim McPherson to his wife, and in this letter the moment that was happened with Tommy and Fritz, means German soldiers and British soldiers, that Christmas party was discussed in this letter. And also in the letter was written that Jim McPherson will come back home by next Christmas. But we also know that Jim McPherson never come back with Connie, because हो सकता है कि वो वॉर कंडीशन में वहां पर ही उसकी डेथ हो गई होगी। लेकिन जब कॉनी को वो लेटर देने जाता है, पहुंचता है, तब कॉनी वो राइटर को ही अपना हस्बैंड समझ लेती है और फिर कहती है कि यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। एंड नाउ वी सी द कंपैरिजन चेक। फर्स्ट, who did Connie McPherson thinks her visitor was? Connie McPherson's thought visitor was his own husband. Which sentence in the text shows that the visitor did not try to hide himself? ऐसा कौन सा सेंटेंस है कि जो ऐसा कहता है, ऐसा हमें बताता है कि जो विजिटर था, जो राइटर था, उसने अपनी आइडेंटिटी को छुपाने की कोशिश नहीं की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट कि जब कॉनी राइटर को कहते कि कम क्लोजर एंड सिट डाउन विथ मी, ये सेंटेंस को आप देख सकते हो। उसके बाद जो राइटर है वो उसके पास बैठ जाता है
और जब इवन कोनी ने उसको किस किया उसके बाद भी उसको राइटर ने ये कोनी को बताया नहीं कि मैं उनका हस्बैंड हूँ या नहीं हूँ। तो ये जो सेंटेंस है वो हमें दिखाता है कि राइटर अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्रेस नहीं किया। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर इन दिस लेसन। नाउ वी डिस्कस अबाउट इट्स क्वेश्चन आंसर इन नेक्स्ट।